Following is the nursing action for assessment of major sign of associated with hydrocephalus. हाइड्रोसिफेलस से है तो अपना जो मेजर साइन क्या रहेगा असेसमेंट में? टेस्ट द यूरिन फॉर प्रोटीन, टेक द एपाइकल पल्स, पैल्पेट द इंटीरियर फॉन्टेनल, टेक द ब्लड प्रेशर. तो अपन जो है ये हाइड्रोसिफेलस है तो मेजर साइन यहाँ पे इंटीरियर फॉन्टेनल अपन देखेंगे. सो पैल्पेट द इंटीरियर फॉन्टेनल टू असेस टेंस एंड बल्जिंग और डिले इन देयर क्लोजर. सो दीज आर द मेजर साइन. Increased ICP may also cause decreased pulse, increased temperature एंड अगर ICP इंक्रीज़ है तो वहाँ पे पल्स डिक्रीज़ रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ रहेगा, सिस्टोलिक BP और टेम्परेचर इंक्रीज़ रहेगा, हाई पिच्ड क्राई रहेगा, नॉशिया वॉमिटिंग. स्पाइना बाइफिडा हेड सरकमफ्रेंस इज मेजर्ड टू डिटेक्ट डिस्निया है, सेरेब्रल एडिमा है, हाइड्रोसेफेलस कोमा. स्पाइना बाइफिडा head circumference is measured to detect. Spina bifida daily measurement of head circumference and bulging or widening of anterior fontanelle is essential to detect the development of hydrocephalus. यहाँ पर स्पाइना बाइफिडा में अगर हेड सरकमफ्रेंस देख रहे हैं तो अच्छा स्पाइना बाइफिडा में डेली मेज़रमेंट रहेगा हेड सरकमफ्रेंस का. एंड बल्जिंग वाइडनिंग ऑफ एंटीरियर फंटनल इज एसेंशियल टू डिटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोसेफेलस. इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज रिजल्ट इन स्पाइना बाइफिडा रहेगा. स्पाइना बाइफिडा इज अ कंजेनाइटल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. That may be characterized by the following description. It has a little influence on the child intelligence or perceptual ability of the child. It is a simple neurologic defect that can be corrected surgically a few days after birth. It is a complex neurologic disability that is usually fatal within the first year of life, and its presence indicate that many areas of CNS may be underdeveloped or function improperly. यहाँ पर पूछा है स्पाइना बाइफिडा जो कंजेनाइटल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है मे बी कैरेक्टराइज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. सो यहाँ पर है डी आंसर. Its presence indicate that many areas of CNS that may be underdeveloped or function is improperly. स्पाइना बाइफिडा जो होता है CNS का डिफेक्ट रहता है. न्यूरल फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब to close during the embryonic period, and it involves the defect into many areas of CNS like skull, vertebral column, spinal cord, etc. It has no influence on the child intelligence and perceptual ability. Defect closure is performed soon after the birth. Term meningocele means meninges protrude out through the spinal cord, CSF collected in the cyst. Spinal cord and cord membrane protrude out, only spinal cord is protrude. तो meninges protrude out through spinal cord, ये होता है meningocele. Meningocele is a congenital hernia in which only meninges protrude through a defect in the skull or spinal cord, not spinal column, not cord. Hernial protrusion of sac-like cyst of meninges filled with spinal fluid is known as meningomyelocele
ये होगा मेनिंगोसील होगा, इसमें सैक लाइक सिस्ट बहे बनता है और इसमें स्पाइनल फ्लूइड भी फिल्ड रहता है। और इसमें मायोसील में फ्लूइड भी रहेगा, सिस्ट भी बनेगा और इसमें जो नर्व्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं मेनिंगोमायोसिल में। ये यहाँ पर है और मेनिंगोमायोसिल और मेनिंगोसिल यहाँ पर ये है दैट मीन सिंपली प्रोट्रूजन out through the spinal cord. Bulging sac like lesion filled with spinal fluid and spinal cord element. स्पाइनल कॉर्ड तो मेनिंगो मायोसील है क्योंकि उसमें स्पाइनल कॉर्ड भी है, स्पाइनल फ्लूइड और प्रोट्रूजन तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी यहाँ पे है, तो आपको मेनिंगो मायोसील यहाँ पे आएगा। मेनिंगो माइलो is a congenital hernia in which the spinal cord and meninges protrude through defect. It occurs due to failure of neural tube to close during the embryonic development about the 28 days after the conception. Which of the following neural tube defect? There is a protrusion of meninges with spinal tissue and CSF. टिश्यू CSF रहेगा। मेनिंग यहाँ पर ये है मेनिंगोमायोसिल, क्योंकि यहाँ पे न्यूरल ये है, प्रोट्रूजन भी है, स्पाइनल टिश्यूज़ भी है, CSF भी है, इसलिए यहाँ पे मेनिंगोमायोसिल आएगा। A nurse is performing an admission assessment on a newborn infant with a diagnosis of spina bifida. और उसमें भी मेंशन है ये कि मेनिंगोमायोसिल का कंडीशन है। The nurse assesses for a major symptom associated with the type of spina bifida when the nurse तो यहाँ पर ये पूछा है कि मेजर सिम्टम यहाँ पे क्या असेस करेंगे ये मेनिंगोमायोसिल के रिगार्डिंग। तो चेक द कैपिलरी रिफिल ऑफ द नेल बड्स of upper extremity, test the urine or blood, palpate the abdomen for masses and check for response to painful stimuli from torso downward. Nurse is performing an admission assessment on a newborn infant with a diagnosis of spina bifida. Nurse assess for the major symptom associated with this type of spina bifida. तो आपको मेनिंगोमायोसिल की कंडीशन है तो चेक फॉर रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलाई फ्रॉम टॉर्सो डाउनवर्ड. दिस डिफेक्ट यूजुअली फाउंड इन द lumbosacral spine and often result in significant impairment in urination, defecation, walking. ये इसके केस में है मेनिंगोमायोसिल के केस में, and decrease the response to painful stimuli from torso downward. इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पर ये जो डिफेक्ट है लंबोसैक्रल रीजन का डिफेक्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में यूरिनेशन, डेफिकेशन, वॉकिंग में ये आपको सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा और स्पास्टिक और फ्लैसिड पैरालिसिस भी सीन होगा एंड डिक्रीज रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलाई फ्रॉम टॉर्सो डाउनवर्ड. तो वही है यहाँ पे रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलाई यहाँ पर चेक करना है टॉर्सो डाउनवर्ड. बाकी ये चीज़ इंक्लूड होगा नहीं. टेस्ट ऑफ द यूरिन टेस्ट द यूरिन और ब्लड, palpate the abdomen masses, capillary for nail buds. Child after hydrocephalus surgery is in post-operative unit. Nurse will assess the following on priority. तो यहाँ पर पोस्ट ऑप में प्रायोरिटी क्या देंगे हाइड्रोसेफेलस सर्जरी में. तो रूटीन वाइटल साइन एंड साइट आउट ड्रेसिंग. वाइटल साइन एवरी 15 to 20 minutes
papillary reaction and routine vital sign IV fluid and BP 1 hourly in papillary reaction. Measurement of head circumference, monitoring a vital sign and neurological sign like papillary erection and level of consciousness, and priority assessment post-operatively after hydrocephalus surgery. It is used to monitor intracranial pressure ICP. बी को बोल रहे हैं कि वाइटल साइन आपको एवरी 15 to 20 मिनट्स में देखना है. पिपलरी रिएक्शन टाइम ये रहेगा. और रूटीन वाइटल साइन तो अपने को तो देखना ही रहता है सारे को. नॉर्मल सर्जरी नहीं हुई है तब भी अपने को देखना रहता है. रूटीन आईवी हुआ, वाइटल आईवी, बीपी एंड पिपलरी रिएक्शन. यहाँ पर हमने को कंडीशन मिला हुआ है कि जस्ट आफ्टर पोस्ट ऑप में की कंडीशन में हाइड्रोसेफेलस हुआ है तो अपने को पिपलरी रिएक्शन और वाइटल साइन फ्रीक्वेंट अपने को ये चीज़ के लिए प्रायोरिटी देनी है हमको. A 2-year-old boy returned to the pediatric unit following insertion of ventriculoperitoneal shunt. The nurse should plan for the child to be placed in what position in the early post-operative period. पोजीशन पूछा है. वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट है तो इसके लिए पोजीशन क्या रहेगी. पोस्ट ऑपरेटिव सेमी फॉलोअर्स ऑन द ऑपरेटिव साइड, सेमी फॉलोअर्स ऑन द अनऑपरेटिव साइड, फ्लैट ऑन द ऑपरेटिव. वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट लगा है तो अनऑपरेटिव साइड पर ही आप रखोगे उसको, क्योंकि जिस साइड पे शंटिंग रहेगी उधर तो प्रेशर नहीं दे सकते, तो अनऑपरेटिव साइड पे ही रखोगे. और यहाँ पर वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट कनेक्टिंग द वेंट्रिकल्स ब्रेन टू. शंटिंग यहाँ पर ब्रेन टू पेरिटोनियम रहती है. वेंट्रिकुलोपेरिटोनियम तो यहाँ पे वेंट्रिकल से मतलब वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन टू यहाँ पे पेरिटोनियम में शंटिंग रहती है. सो विच इज़ यूज टू ट्रीट हाइड्रोसेफेलस. प्लेस द चाइल्ड फ्लैट टू अवॉइड रैपिड रिडक्शन ऑफ CSF ऑन अनऑपरेटिव साइड टू अवॉइड प्रेशर ऑन द शंट वॉल्व. अनऑपरेटिव साइड पे तो रखना ही है और साथ में ही चाइल्ड को अपने को फ्लैट पोजीशन सुपाइन में ही उसको सुपाइन पोजीशन ही देना है ताकि जो रैपिड रिडक्शन है उस CSF का वो अवॉइड रहे. An infant born with non-communicating hydrocephalus has just had a ventriculoperitoneal shunt inserted in addition to neuromuscular assessment. What measures should the nurse use in the child care plan? तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट के लिए जिसमें नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है तो यहाँ पर अपने को उसका ये मेज़र करना होगा. हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखना होगा. अब वेंट्रिकुलर शंट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसेफेलस. एसाइटिस में तो टेपिंग करते हैं. और आफ्टर क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न meningomyocele, it is essential that the nursing care include closure newborns, तो strict limitation of leg movement, decrease the environment stimuli, measurement of head circumference daily, and observation of सीरस ड्रेनेज. यहाँ पे ये हाइड्रोसेफेलस के केस में भी और
स्पाइना बाइफिडा के केस में भी पोस्ट ऑप अपने को प्रायोरिटी नर्सिंग जो है ये मेजरमेंट ऑफ हेड सरकमफ्रेंस को ही देना रहता है डेली. After surgical repair of meningomyelin, there is increased chance of hydrocephalus, increased chance of infection, shock, and increased ICP. Bulging fontanelles are most common indicator in infants. So, because of increased chance of hydrocephalus, so daily measurement of head circumference is essential. Nurse is caring for a newborn infant with spina bifida में भी meningomyelin की condition है, who is the schedule for surgical closure of sac. In the post-operative period, the priority nursing action pre-operative पीरियड है ये. इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? बी ब्लड प्रेशर, moisture of normal saline dressing covering the sac and specific gravity of urine anterior fontanelle. मेनिंगोमाइसिला स्पाइना बाइफिडा का केस हमेशा ना प्रोट्यूजन को ये मॉइस्चर नॉर्मल सलाइन ड्रेसिंग से ही कवरिंग अपने को देनी है सैक को. सो ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव period, protecting the sac with with sterile moist normal saline and non-adherent dressing to maintain the moisture of sac and their content are priority management. Nurse is caring for an infant who is born with hydrocephalus and has just shunt inserted. Which of the following sign indicate that the shunt is functioning properly? तो यहाँ पे जो बॉन्ड हाइड्रोसेफेलस से वो हुआ है, हाइड्रोसेफेलस के साथ बॉन्ड हुआ है इन्फेंट, सो जस्ट एज शंट इंसर्टेड. तो यहाँ पर कौन सा साइन जो है इंडिकेट करेगा शंट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली? द सनसेट साइन, ये तो सनसेट साइन हुआ. बल्जिंग फॉन्टेनल, ये इंक्रीज्ड आईसीपी के साइन है ये. और डिक्रीज डेली हेड सरकमफ्रेंस, वाइडनिंग, सूचर लाइंस, तो ये सारे other option are indicator improper malfunctioning. Priority nursing intervention for an infant with hydrocephalus before surgery. सर्जरी के पहले प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? असेस बीपी फ्रिक्वेंटली एवरी 15 मिनट, प्रोवाइड एक्साइटिंग इन्वायरमेंट, चांस टू पोजिशन ऑफ इन्फेंट फ्रिक्वेंटली एंड चेंज टेस्ट द यूरिन फॉर. यहाँ पर ना बिकॉज द हेड ऑफ इन्फेंट ग्रो at the faster rate, so change the position frequently to prevent the pressure or ulcer on the bed, and provide calm quiet environment, not exciting environment, and for increasing ICP, so no need to assess the blood pressures at a 15-minute interval, and no assess urine for protein. यहाँ पर वही है कि अगर हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन है, सो infant grow at the faster rate, so the change the position frequently is to prevent the ulcer on head. Reye syndrome is associated with the hemolytic transfusion reaction, use of aspirin with viral illness. ये वाला रे की कंडीशन. Reye syndrome is an acute encephalopathy after the viral infection 4 to 7 days, which is characterized by cerebral edema, fatigue, changes in the liver cells. Use of aspirin trigger the situation in Reye syndrome, so it should be avoided. Among these which is priority nursing intervention for a child diagnosed with Reye syndrome. तो यहाँ पर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा जो चाइल्ड Reye syndrome से डायग्नोज हुआ है? तो
changing body position every 2 hourly, provide calm, quiet, dim light environment, monitor urine output, assessing hearing loss. यहाँ पर जो है प्रोवाइड काम क्वाइट एंड डिम लाइट इन्वायरमेंट देना होता है, क्योंकि मेन फोकस रे सिंड्रोम वालों में यहाँ पर सेरेब्रल एडिमा को मैनेज करना होता है. सो द प्रोवाइड सेरेब्रल एडिमा होने का ये है, क्योंकि ये कंडीशन जो है रे सिंड्रोम में ये ब्रेन और लिवर की कंडीशन होती है, ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है. सो मैनेजिंग सेरेब्रल एडिमा, सो प्रोवाइड क्वाइट calm environment with the dim light to decrease the stress on cerebral tissue. Which of the following would the nurse recognize as most characteristic of cerebral palsy? Cerebral palsy, it is reversible, it is progressive, it is usually result in mental retardation. Cerebral palsy, it appear at birth or during the first 2 years of life. C, result in mental retardation. Cerebral palsy is term used for the group of non-progressive, non-curable and irreversible disorder characterized by impaired movement and posture due to defect into a pyramidal extrapyramidal motor system. Cerebral palsy often occurs with associated defects such as mental retardation. 60% केसेस में मेंटल रिटार्डेशन मिलेगा एंड एपिलेप्सी भी आपको 50% सीन होगा. विच इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द मदर ऑफ चाइल्ड with her cerebral palsy most likely correlate with the to the diagnosis. She born at 42 weeks gestation. मदर में क्या कंडीशन रहेगी वो पूछा है यहाँ पे. She had meningitis when she was 6 months old. She had physiological jaundice after delivery. She has frequent sore throat. Cerebral palsy है के लिए पूछ रहा है. मोस्ट लाइकली कोरिलेट्स टू द डायग्नोसिस. यहाँ पर जो है she had physiologic jaundice after the delivery. Causes of cerebral palsy are maldevelopment of brain, perinatal hypoxia, brain trauma, indirect hyperbilirubinemia, kernicterus, LBW, intrauterine और acquired infection. तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दे रहे हैं. सेरेब्रल पैल्सी के लिए शी हैड मेनिंजाइटिस भी यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा. मेनिंजाइटिस भी यहाँ पर इन्फेक्शन जो है दिया गया है, फिर भी अपने को फ्रिक्वेंट ये नहीं आएगा. तो प्रायोरिटी देना है कि हाइपरबिलिरुबिनिया कर्निक की कंडीशन में ना ये, हाँ ये जो कर्निक टेरस हाइपरबिलिरुबिनिया की कंडीशन है ये ब्रेन में कर्निक टेरस कॉज करता है ना, ये वाला ये जॉइंटिस की कंडीशन. तो यहाँ पर यही ऑप्शन आएगा. सी हैड फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस आफ्टर द डिलीवरी. ये अपन मोस्ट लाइकली कोरिलेट करेंगे सी ऑप्शन को. हाइपरटोनिसिटी एंड सीजिंग लेग movement or expected clinical finding are hypertonicity. ऑटिज़म में बच्चा म्यूट होता है. सिजोफ्रेनिया साइकेट्रिक कंडीशन है, मेंटल रिटार्डेशन. यहाँ पर ये मोटर हाइपरटोनिसिटी, सीजरिंग लेग मूवमेंट, मोटर इम्पेयरमेंट है, तो यहाँ पर सेरेब्रल पैल्सी आएगा. So clinical feature of cerebral palsy are asymmetric movement, like seizing leg movement, abnormal posturing like opisthy, tonus, irritability, crying, feeding difficulty, high
high pitch high pitch crying, feeding difficulties, high pitch cry, forehead control, and persistent primitive infantile reflex beyond 6 month. Most primitive reflex disappear by 3 to 4 months of age. The pulse, the pupil of child. The pupil of child with a head injury are dilated and react sluggishly. So this is indicative of barbiturate overdose है, damage to the diencephalon, damage to the sympathetic. क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है ना, तो डैमेज टू द सिंपैथेटिक, डैमेज टू द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. Parasympathetic system is responsible for the pupillary constriction, so its damage may cause the pupillary dilation and sluggish reaction. Parasympathetic system is responsible for the pupillary constriction के लिए रिस्पॉन्सिबल है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. अगर यहाँ डैमेज होगा तो पिपल जो है कंस्ट्रिक्ट ना करके डायलेट कर जाएगी, स्लगिश रिएक्शन रहेगा. अगर सिंपैथेटिक में डैमेज रहता तो पिपल जो है कंस्ट्रिक्ट होती, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो डायलेट करता है पिपल. While monitoring the unconscious child admitting with a history of fall, nurse noticed that the child suddenly has fixed and dilated pupils. So this indicate pupil dilate हो गई है ना. So damage, neurological emergency, damage increased parasympathetic, neurological emergencies has fixed dilated pupil. So this indicate the suddenly becoming a fixed and dilated pupil may be caused by the head injury. So it is indicative of न्यूरो सर्जिकल इमरजेंसी. यहाँ पर फिक्स वहाँ यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि सिंपली डायलेटेड एंड यहाँ पर स्लगसली रिएक्ट हो रहा है, बट कर रहा है रिएक्ट यहाँ इस केस में. लेकिन यहाँ पर जो है फिक्स डायलेट तो हुई है लेकिन पीपल जो फिक्स भी हो गई है. तो ये कंडीशन जो है ये न्यूरो सर्जिकल इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती, इमरजेंसी की कंडीशन है अगर पीपल फिक्स हो गई है तो. चाहे डायलेट भी हुई रहे, कंस्ट्रिक्ट भी हुई रहे, बट फिक्स हो जाए तो फिर वो हाँ. तो इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, cardiovascular disorder. Which of the following congenital cardiovascular disorder is considered acyanotic? Tricuspid atresia, pathology of fallot, truncus arteriosus patent. यहाँ पर जो है पीडीए ही है जो एसाइनोटिक कंडीशन है. congenital cardiovascular disorder or structural abnormality of heart great vessels so that occur during the intrauterine development. These abnormalities are commonly classified by the presence of cyanotic and acyanotic. So acyanotic defect include the atrial, ventricular, atrial septal, VSD, SD, coaction of aorta, and PDA, patent ductus arteriosus. And cyanotic defect include a tetralogy of fallow, transposition of great artery, great vessels, and tricuspid atresia and hypoplastic left heart syndrome, coerection of aorta, narrowing of aorta. Pulmonary stenosis and aortic stenosis are obstructive heart disease that also shown cyanotic, so-called cyanotic heart disease. Which of which of the following is not a congenital heart disease?
इस्कीमिक हार्ट ये सारे जो है कंजेनाइटल है, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। इस्कीमिक हार्ट ISD जो है नहीं है। सो द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज जो है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट है। इन द फॉलोइंग विच इज अ कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक हार्ट डिसीज पूछ रहा है, तो यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस एक्चुअली में साइनोटिक, देखो यहाँ साइनोटिक में पल्मोनरी स्टेनोसिस, अरे यार ये पल्मोनरी स्टेनोसिस आएगा ना इसमें, ये तीनों तो ये साइनोटिक कंडीशन है। और पल्मोनरी स्टेनोसिस ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर आता है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अंडर द साइनोटिक हार्ट डिसीज। यहाँ पर आएगा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। Which of the following, which among the following is a medical condition in which there is the connection between the pulmonary artery and aorta के बीच में अगर कनेक्शन हो जा रहा है तो वो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वेंट्रिकुलर पेटेंट PD ही है। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस एंडोमेथासिन होता है। और यहाँ पर the 2-year-old child has congenital cardiac malformation that cause a right to left shunting of blood through the heart. What clinical finding the nurse should expect in absence of pedal peripheral edema, hematocrit proteinuria? अगर राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है, अगर लेफ्ट ये वाला है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है ब्लड की, मे कॉज द साइनोटिक कंडीशन में आ जाता है। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू शंट इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। पॉलीसाइथीमिया मतलब होता है एलिवेटेड हेमाटोक्रिट एंड इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी may develop as a compensatory mechanism of और डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो में भी आएगा ये, which may increase the risk of thrombophlebitis, formation of emboli. A 2-year-old child had cyanotic congenital heart disease. A nurse would expect to observe elevated hematocrit. अगर ये साइनोटिक हार्ट कंडीशन है, कंजेनाइटल कार्डियक मालफॉर्मेशन दैट कॉजेस, बच्चे को अगर साइनोटिक ये जो है ना साइनोटिक कंडीशन में तो शंटिंग जो है एक तो राइट टू लेफ्ट चलती है, डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट शंटिंग रहती है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में जो है ये पॉलीसाइथीमिया सीन होगा। एलिवेटेड हेमाटोक्रिट, इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी। इन पॉलीसाइथीमिया मतलब ये हेमाटोक्रिट लेवल बढ़ा रहेगा, मतलब ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ी रहेगी। सो अगर ये कंडीशन है, दिस में डेवलप एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ, ये कंडीशन मतलब ये कंडीशन डेवलप होती है उसकी वजह से, साइनोसिस में कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो चलती है उसकी वजह से कंडीशन आती है, जो क्या इंक्रीज़ कर सकता है, ये क्लॉट एम्बोलाई, थ्रोम्बस क्रिएट होने का चांस रहेगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का, कि यहाँ पे विस्कस बढ़ गई है ब्लड की। और यहाँ पे वही सेकंड में भी 2-year-old चाइल्ड है और साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, तो यहाँ पर भी हेमाटोक्रिट लेवल, और इसको बोलते हैं एलिवेटेड हेमाटोक्रिट पॉलीसाइथीमिया।
द कॉम्प्लिकेशन फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD में हार्ट फेलियर रहेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन रहेगा, एंडोकार्डाइटिस रहेगा। सेरेब्रल पैल्सी यहाँ पे नहीं आएगा। VSD इज़ मोस्ट कॉमन, जो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है ना उसमें मोस्ट कॉमन रहता है ये VSD। जो क्या है, ये साइनोटिक हार्ट डिसीज़ है इन विच ब्लड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लेफ्ट वेंट्रिकल से लो, जो हाई प्रेशर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड टू लो प्रेशर राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है। VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, VSD में जो मोस्ट कॉमन है, ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ की कंडीशन में VSD मोस्ट कॉमन है। और यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है ना वो लेफ्ट, ये है हार्ट है ना, ये राइट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल हुआ, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा, ये पल्मोनरी वेन से ब्लड यहाँ एट्रियम में आएगी, यहाँ से फिर मिट्रल वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यहाँ पे हाई प्रेशर के कारण ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि ये वेंट्रिकल में डिफेक्ट है ना, यहाँ पर वेंट्रिकल में डिफेक्ट है, जाना तो उसे पल्मोनरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कंडीशन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की कंडीशन है, तो ब्लड जो है यहाँ वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से आएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी, शिफ्ट होगी, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड रहेगी जब यहाँ पे रहेगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जब यहाँ राइट साइड में शिफ्ट होने से ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगी। एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ VSD की क्या क्या कॉल में पल्मोनरी हाइपरटेंशन रहेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस है, रिकरेंट RTI, pulmonary stenosis and failure to thrive. A child has co-erection of aorta. What should the nurse expect to identify when taking the child vital sign? Weak radial pulse, irregular heart bounding pulse, elevated blood pressure in the arm. तो co-erection of aorta है, aorta is localized congenital malformation resulting in narrowing of the aorta. Usually distal to the subclavian artery. So it increased blood flow to upper extremities, often resulting in hypertension. In arm. 1-month-old boy present with failure to thrive on examination that he shows feature of congestive heart failure. The femoral pulses are feeble as compared to the brachial pulses, the most likely clinical diagnosis. Congenital aortic stenosis, co-erection of aorta, conductus arteriosus, congenital aortic disease B, co-erection of aorta. 1 month old boy है, failure to thrive है, on examination shows the feature of congestive heart failure and the femoral pulse जो है the physical assessment of a newborn indicate the absence of femoral pulse, it a significant sign of the co-erection of aorta आएगा क्या, ये co-erection of aorta
ये है पल्स से बहुत ही कनेक्टेड है हर जगह ये, है ना। फीमोरल पल्स यहाँ पर भी कोरेक्शन ऑफ एओर्टा है, तो यहाँ पर भी फीमोरल पल्स as compared to the brachial pulse and the most likely सिस्टम एब्सेंस, यहाँ पर एब्सेंस है फीमोरल पल्स इस कंडीशन में। pulse are feeble as compared to the brachial pulse is most likely to sign, क्या है लिखा है, it is significant sign of C correction of aorta. If foramen ovale is not closed after his birth of child, so that can affect the child in which the will be true blue रहेगा, child will be anemic, none of the above, and developmental and growth is affected. यहाँ पर पूछ रहा है ये वो फोरामेन ओवल अगर क्लोज नहीं है आफ्टर बर्थ, नहीं पाया है, सो देन इट कैन बी टेड द चाइल्ड इन दिस वे, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज अफेक्टेड। हाँ एकदम से फोरामेन ओवल जो है यूजुअली इसका एनाटॉमिकल क्लोजर तो शायद टाइम लगता है, फिजियोलॉजिकल ही वो क्लोज हुआ रहता है सून आफ्टर। तो एकदम से अगर ये नहीं है, क्लोज नहीं हुए हैं, तो ये चाइल्ड एकदम ट्रू ब्लू साइनेमिक ये कंडीशन नहीं डेवलप होगी, उसमें डेवलपमेंटल ग्रोथ ये चीज़ें अफेक्ट होगा। Foramen oval is not closed after the birth of child, so it will result into atrial septal ASD scene होगा, so cause shunting of oxygenated blood from higher pressure left to right shunting होगी यहाँ पे, and SD is a acyanotic heart disease होती है without a cyanosis, so characterized by the recurrent chest pain, poor weight gain, poor development and growth, dyspnea on the exertion and cardiac enlargement ये शो होगा। ये एस डी साइनोटिक कंडीशन है, तो ये चीज़ें ब्लू एनीमिक कंडीशन ये चीज़ें नहीं आएंगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, which of the following defect cause obstruction to oxygenated blood flow to all atrial aortic stenosis, aortic stenosis सी ही रहेगा, सी आएगा, क्योंकि एवोटिक स्टेनोसिस, क्योंकि जो है सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन एवोटा एवोटा से ही तो हो रहा है, तो यहाँ पर ये बोला है कि बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफेक्ट अगर होता है कहाँ डिफेक्ट होगा, तो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट होगी ऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ पर एवोटिक स्टेनोसिस ही आएगा सी। इज एन एम्पेयरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी ड्यू टू एवोटिक वॉल डिसीज और ऑब्स्ट्रक्शन जस्ट अबव और बिलो द वॉल, and the nurse review the record of child just seen by a physician, and the physician has documented a diagnosis suspected aortic stenosis. Nurse expect to note the documentation of which of the following clinical manifestation is specifically found in these disorder. बच्चा जो है ये सस्पेक्ट हुआ है एवोर्टिक स्टेनोसिस, तो नर्स एक्सपेक्ट टू नोट कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से एक एक्सपेक्टेशन को डॉक्यूमेंट करेगी नर्स, किस कि अगर एवोटिक स्टेनोसिस की कंडीशन है तो कौन सा यहाँ पे चीज़ मैनिफेस्ट रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा। एवोटिक स्टेनोसिस, एवोटिक स्टेनोसिस है, तो यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में देखें अपन कि ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये ऑब्स्ट्रक्ट रहेगा ब्लड फ्लो, तो
बच्चा जो है जीआईटी डिस्टरबेंस भी एक बार ये नहीं बोल सकते, हाइपर एक्टिव तो रहेगा ही नहीं। पीलर ये एओर्टिक ये साइनोटिक कंडीशन नहीं है ये। और लेकिन यहाँ पर जो है पूरी बॉडी में ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है ब्लड फ्लो, तो एओर्टिक स्टेनोसिस ये सस्पेक्ट हुआ है, तो फिर ये एक्सरसाइज इंटॉलरेंस यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना होगा अपने को। विच of the following is not indicated by the increased pulmonary blood flow, that is left to right shunting? Left blood flow is not blood flow that is left to right shunting, not indicated by increased pulmonary blood flow. इंक्रीज्ड पल्मनरी ब्लड फ्लो में कौन सा नहीं आएगा? ट्रेटलॉजी, फेलोड, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो में नहीं आएगा क्योंकि ये साइनोटिक कंडीशन है। यहाँ पे शंटिंग ट्रैटॉफ की कंडीशन में राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है, साइनोटिक कंडीशन है ये। डिक्रीज होती है पल्मोनरी ब्लड फ्लो ड्यू टू राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे पल्मोनरी इनफंडिबुलर ओ ओ ओ फेलोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एट्रियस एच डी रहेगा। एच डी कहाँ रहेगा इसमें? टॉप में वीएचडी रहता है, ओवर राइडिंग एओर्टा रहता है। पल्मोनरी कंस्ट्रिक्शन मतलब वही है, पल्मोनरी स्टेनोसिस ही है, यहाँ पे इनफंडिबुलर यूज़ कर दिया है इसने। बाकी एचडी तो आएगा ही नहीं इसमें, तो साइनोटिक यही साइनोटिक कंडीशन है ये। फेलोट इज मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल malformation of heart and great blood vessels, so include four defects, that is VSD, right ventricular hypertrophy, pulmonary stenosis, वही है, pulmonary infundibular constriction and dextroposition। डेक्स्ट्रोपोजिशन मतलब डिस्प्लेसमेंट टू द राइट उसका ऑफ द एवोटा, और ओवर राइडिंग ऑफ एवोटा उसी को ही बोल रहे हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एवोटा का, डेक्स्ट्रोपोजिशन। एवोटा जो है जैसे लेफ्ट साइड पे होती है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, तो डेक्स्ट्रोपोजिशन मतलब डिस्प्लेसमेंट टू द राइट साइड ऑफ एवोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रैटोलॉजी ऑफ फेलोड? राइट टॉप में पल्मोनरी स्टेनोसिस आएगा, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, पीडीए नहीं आता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ये साइनोटिक कंडीशन है। सेलेक्ट द एनाटॉमिक malformation associated with the tetralogy of Fallot. वेंट्रिकुल यहाँ पर ये पूछ रहा है टॉप में ही क्या क्या आना है, क्या क्या इंक्लूडेड है। वीएसडी है, ओवर राइडिंग एओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइप, यही तो यही वाला आएगा इसमें, और बाकी पढ़ने का काम नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर कंजेनाइटल कार्डियक एबनॉर्मलिटीज इज नोन एज फोर कॉम्बिनेशन। फोर तो ये फेलोड टेट्रोलॉजी है ना, जो फोर कॉम्बिनेशन, फोर कंजेनाइटल कॉम्बिनेशन कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ का। Child has undergoes heart surgery to repair the defect associated with tetralogy of Fallot post-op. It is essential that nurse prevent crying, hard stool, coughing, unnecessary movement. फैलोट की कंडीशन है पोस्ट ऑप, अपने को क्या चीज़ प्रिवेंट करना है, उसको क्राई नहीं करना है। क्राई विल इंक्रीज द वर्कलोड ऑन हार्ट। कफ भी आएगा इसमें, हार्ड स्टूल, अननेसेसरी मूवमेंट, ये सारे आएंगे। बट ये है कि जो है कफ को भी एक
सपोर्ट वगैरह दे के उसको मैनेज कर सकते हैं। अननेसेसरी मूवमेंट भी रोका जा सकता है। हार्ड स्टूल भी अपन उसको सॉफ्टनर वगैरह दे के ये ठीक है, लेकिन क्राई कर इसको जो है अपने को प्रिवेंट करना है कि क्राई नहीं करने देना है। दिस इंक्रीज द वर्कलोड ऑन हार्ट पोस्ट ऑपरेटिवली एंड मेन कॉज हाइपोक्सिया विच जो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेट स्पेल या ब्लू स्पेल बोलते हैं, हाइपर साइटोमेटिक स्पेल भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है 2 ईयर चाइल्ड विथ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड सडनली फॉल ऑन द फ्लोर, बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। टॉप वाला बच्चा फ्लोर पे गिर गया है सडनली, तो put the child in the bed immediately, allow the child on the sitting position, place the child on the other chair। यहाँ पर जो है put the child in the bed immediate, ये आंसर दिए हैं लोग। hypoxic spell should be managed by the placing the baby in knee chest or squatting position, by the administering oral propranolol and sedatives, avoid injection because crying of the baby and may increase the cyanosis, so oxygen therapy and fluid replacement। So the first, put the child in the bed immediately to make comfort, avoid the crying, and the oxygen therapy during the spell has limited value। यहाँ पर जो ऑप्शन में है टॉफ बच्चे जो है टॉफ वाला है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट वाला, और इसको जो मैनेज करते हैं वो पोजीशन रहती है स्क्वांटिंग पोजीशन या नी चेस्ट पोजीशन, इसलिए यहाँ पर जो है बी ऑप्शन को अपन यहाँ पर सिटिंग पोजीशन दिया है, तो बी ऑप्शन को कैंसिल करते हैं। और देखो सिटिंग पोजीशन बोलो या फिर चाइल्ड प्लेस चाइल्ड ऑन द चेयर, ये दोनों एक ही हो जा रहा है, बी और सी। कॉल फिजिशियन इमीडिएटली, कॉल तो करेंगे लेकिन उसके पहले जो है चाइल्ड को पहले बेड पे शिफ्ट करेंगे ताकि उसको मे टू मेक comfort and avoid crying। द चाइल्ड विथ a tetralogy of fallot position तो यहाँ पे स्क्वांटिंग पोजीशन देते हैं बच्चे, स्क्वांटिंग इंडियन टॉयलेट जैसी कुछ कंडीशन है ये। बेबी विथ अ साइनोटिक स्पेल कैन बी काम्ड बाय द प्रोवाइडिंग, हाँ काम किया जा सकता है उसको नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करके। व्हाट इज़ द इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर साइनोसिस ऑफ चाइल्ड विथ, इमीडिएट इंटरवेंशन क्या रहेगा, है ना, ट्रांसफ़र आईसीयू में, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, प्लेस हर नीचेस्ट पोजीशन, कॉल अ पीडियाट्रिशियन, नीचेस्ट पोजीशन में ही अपन प्लेस करेंगे। देन द चाइल्ड विथ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, suddenly had cyanosis dyspnea, nurse will immediate change position to side with knee flexed and head elevated, change position to upright position, start oxygen, inform doctor, provide comfort and रेस्ट। यहाँ पर जो है कंडीशन कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ की है, सडन हेड साइनोसिस एंड डिस्निया। एक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है, साइनोटिक वाला बच्चा है, तो फिर ये पोजीशन अपने को देना है नी फ्लैक्स और हेड एलिवेट करके, नी चेस्ट पोजीशन जो है अपने को नी फ्लैक्स है ना यहाँ पे, ये स्क्वांटिंग पोजीशन है। टेट स्पेल में स्क्वांटिंग, साइनोटिक कंडीशन में स्क्वांटिंग और नीचे पोजीशन दोनों देते हैं। ये जो है स्क्वांटिंग पोजीशन है जो इंडियन टॉयलेट की कंडीशन में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे ये स्क्वांटिंग मतलब ये सिटिंग पोस्चर हो जाता है और ये कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है। और स्क्वांटिंग इट इंक्रीजेस द
पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को ये इंक्रीज़ करता है। जो ये चीज़ होने से क्या होता है, विच डिमिनिशेस द राइट टू लेफ्ट शंटिंग जो है ये डिमिनिश होती है, क्योंकि ये साइनोटिक कंडीशन में यही प्रॉब्लम रहती है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है, तो वो चीज़ जो है डिमिनिश होती है और फिर जिसकी वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा और फिर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो है वो भी इम्प्रूव होगी। Clubbing of the nails is common finding in cyanotic or heart disease. Clubbing of fingers mean a large terminal phalanx of fingers and present in COPD, cyanotic congenital heart disease, carcinoma of lung, bacterial endocarditis, and any other condition cause chronic hypoxia. And when assessing a child with chronic hypoxia, the nurse should monitor for the slow irregular respiration रहेगा, clubbing रहेगा fingers का। अगर कहीं पे भी क्रोनिक हाइपोक्सिक कंडीशन आ रहा है तो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, इसमें स्पून शेप फिंगर हो जाते, नील्स हो जाते हैं। द ड्रग दैट यूज टू ट्रीट साइनोटिक स्पेल इन चाइल्ड, यहाँ पे मॉर्फिन देते हैं तो टू काम डिक्रीज टैकिपनिया एंड also decrease the peripheral vascular resistance, decrease and also decrease the peripheral vascular resistance. Sedative like diazepam may also useful during the cyanotic by making calming effect on the heart and brain. A child with a tetralogy of Fallot has been admitted. What equipment most important have the bedside? तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेप बोला है। Child with TOF may have an anoxic spell रहती, so during feeding, crying due to low O2 in tissue, so always keep oxygen setup ready to use. हाँ, ऑक्सीजन सेटअप ही पहले रखना पड़ेगा। प्रेशर कफ। A child with a teratology of Fallot and history of severe hypoxic episodes is to be admitted to pediatric unit. Which of the following would be most important for the nurse to have bedside? Oxygen tubing and gauze plugged in. टॉक्सिक एपिसोड है। टॉफ चाइल्ड और टॉफ है, इसमें तो वही आएगा। एंड द ब्लॉकिंग टॉजिंग शंट ब्लैलॉक is the surgical management of child surgical management of which of the following congenital टॉफ का ही है क्या? Blocking tossing shunt is an anastomosis of the subclavian artery to the pulmonary artery on the same side due to increased blood flow to the lungs, modified all the use of synthetic graft material to create an anastomosis. And at 6-year-old child is admitted to the hospital for heart surgery to repair TOF. The nurse should anticipate that when the child goes home, the parents will most likely have concern about 6 साल का बच्चा एडमिट है हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी के लिए, ट्रेटोलॉजी ऑफ फेलोट के रिपेयर के लिए, एंड नर्स शुड एंटिसिपेट दैट व्हेन, तो यहाँ पे आएगा अलाउिंग द चाइल्ड टू लीड नॉर्मल एक्टिव लाइफ के लिए अलाउ, ये आंसर है।